Welcome to all. We started with C++ and we completed number of basic things related with C++, and I hope you are going through the sequential link of the video to learn C++ in proper way. So let's start with today's topic. The topic is operators deals with IO stream and scope resolution operator. Okay, these two are really important, and you have many of the things in 12th based on this content. Let's start. Operators deals with IO stream. Okay, you are having two operators. The first one is insertion operator and second one is extraction operator. One by one we will see. Insertion operator. This operator deals with IO stream, that is input output stream. क्या मीनिंग है इसका? IO stream means what? Input output stream. First of all, insertion and extraction both are with IO stream. Okay, both are related with IO stream. What it means? Input and output. IO का मीनिंग क्या है? Input and output. The symbol of insertion operator is, this is the symbol for insertion operator. Insertion operator deals with output stream. So this is really very important line, that insertion operator deals with output stream. It is used along with cout. जब भी हम C++ में कोई cout statement लिख रहे हैं, okay, such kind of statement, if you don't know, go to the first video of C++, you will come to know. I wrote cout welcome to C++ along with this symbol. So this is with output stream in C++ program. Okay, this operator is also known as put to. What is the meaning of put to? What is actual meaning of cout? कि cout में हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट होगा. ओके, वो कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाई देगा हमें. सो इट इज विद द सेम मीनिंग. पुट टू ऑन स्क्रीन. ओके, पुट द कंटेंट ऑन स्क्रीन. सो cout का सेकंड नेम क्या है? पुट टू. सॉरी, इंसर्शन ऑपरेटर का सेकंड नेम क्या है? पुट टू. एंड इट इज रिलेटेड विथ cout के साथ में वो इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल यूज होता है. अगर ये आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है तो जस्ट यू कैन सी हियर out के साथ है इंसर्शन. ओके, अपोजिट वे में आप ध्यान में रख सकते हो. cout के साथ में इंसर्शन है. दिस इज सेकेंड नेम फॉर दिस इज पुट टू ऑपरेटर. ओके, लेट्स सी cout a. तो इससे क्या होगा? You will get value of a. The difference between these two statement is, इन्वर्टेड कॉमा में हमने अगर कोई भी कंटेंट लिखा है तो सेम वे यू विल गेट ऑन द स्क्रीन. मतलब स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा? इससे सिर्फ ए प्रिंट होगा. ओके, बट यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए. cout a मीन्स वैल्यू ऑफ ए, एंड cout इन्वर्टेड कॉमा में a मीन्स यू विल गेट ओनली ए. स्ट्रिंग जैसे हमने पढ़ा है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी कंटेंट दिया है वो क्या करेगा? सेम इट विल पुट टू ऑन स्क्रीन. सेम वे में वो स्क्रीन पे रख देगा. ओके, सो दिस विल गिव यू ए एंड दिस लाइन विल गिव यू वैल्यू ऑफ ए. सो यू कैन सी cout के साथ क्या है? cout डील्स विथ, और इंसर्शन ऑपरेटर डील्स विथ आउटपुट स्ट्रीम, एंड इट इज विथ सिंबल this angular bracket, and this symbol is known as insertion operator, and without this symbol you can't put anything on screen. Okay, so with cout this symbol is important. Next one, extraction operator. Opposite of that only. First of all, this operator is also deals with IO stream. ये भी क्या है? It deals with IO stream. The meaning is input and output stream. The symbol is opposite of insertion, so this will be the symbol. Okay, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डील्स विथ इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम के साथ ये डील होगा. व्हाट इट मीन्स? इट इज
यूज्ड विथ सी इन। ये जो सी इन है, सी आउट से क्या हो रहा था, हम स्क्रीन पे कुछ तो कंटेंट प्रिंट कर रहे थे। सी इन से क्या होता है, वी आर टेकिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। सो दिस इज नोन एज इनपुट स्ट्रीम। ओके, तो सी इन क्या है, इट डील्स विथ इनपुट स्ट्रीम, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डील्स विथ इनपुट स्ट्रीम। इट इज यूज्ड अलोंग विथ सी इन। जैसे सी आउट हमारे लिए क्या काम करता है कि वो स्क्रीन पे कंटेंट को प्रिंट कर रहा है, सेम वे सी इन क्या करता है, यूजर से वैल्यू ले रहा है। सो इट इज यूज्ड अलोंग विथ सी इन। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज गेट फ्रॉम ऑपरेटर। इंसर्शन क्या था, पुट टू, तो सेम वे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज गेट फ्रॉम। व्हाट इज द मीनिंग, गेट फ्रॉम यूजर, you have to get the value from user, get from user। तो ऐसा जब करना होगा तो what we have to use, we have to use सी इन, और सी इन के साथ क्या यूज होगा, we have to use this symbol, extraction operator। So here when you will write सी इन with this extraction operator and a variable will be a, तो ये क्या हो गया, it deals with input stream with this symbol and the data। So user will give data of a, okay, computer will get data from user। computer क्या करेगा यहाँ, computer will get value of a from user। so इसका नाम क्या है, get from, and opposite of, so you can see input, ओके, और सी इन के साथ क्या है, एक्सट्रैक्शन, एंड सी आउट के क्या साथ में क्या है, इंसर्शन। अपोजिट टर्म्स है, सो यू कैन कीप इन माइंड कि दोनों का क्या मीनिंग है। ओके, अपोजिट वे में यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यू यूजर से चाहिए, सो जस्ट राइट दिस सिंबल अगेन एंड यू कैन गिव द वेरिएबल। सो सी इन with this symbol a, and again you can use this symbol to write b, okay, to get the value of b। so multiple value you can get from user with this single cin statement। clear? so this was your operator deals with stream। so this is very simple, just learn in opposite way। okay, next is important one, scope resolution operator। C++ is a block structure language। कैसे ब्लॉक स्ट्रक्चर है, वी विल सी। ब्लॉक मीन्स वो जो हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्लोज कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज वन ब्लॉक। ओके, ये जो ब्रैकेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज वन ब्लॉक। ब्लॉक एंड स्कोप कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम। ब्लॉक और स्कोप कब यूज होता है, जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। Same variables can be used to have different meaning in different block। अब ये important है, we will see this line in the next slide। Same variable, अगर आप same variable है, मतलब a का वैल्यू कहीं पे 5 है, a का वैल्यू कहीं पे 2 है, so इसमें क्या बोल रहे हैं, different meaning हो जाता है उसका। अगर आप variable का वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है कभी जब वो डिफरेंट ब्लॉक में है। मैं यहाँ पे बताती हूँ, you can see int x equal to 10, उसका ब्लॉक क्या है, the block is this is the block for int x, and int x equal to 1 वो यहाँ पे है, this is your second block। okay, so this is your block 1 and this is your block 2। सो ब्लॉक 1 में आप देख सकते हो जो इसका स्कोप है, तो ये int x इक्वल टू 10 कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो x इक्वल टू 10 बस यहीं तक वैलिड है। फिर x इक्वल टू 1, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी वैलिडिटी और यहाँ पे खत्म हो रही है। सो व्हाट इट मीन्स कि कौन से भी वेरिएबल अगर आप मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो, उसका नाम x अगर मैंने 3-4 जगह पे प्रोग्रामिंग में यूज किया है, बट वो अपने स्कोप में ही है, सो व्हाट इट मीन्स वो स्कोप में ही वैल्यू यूज करेगा। व्हाट इट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा, नॉट 10। क्यों? क्योंकि 10 इज नॉट इन दिस स्कोप। क्लियर? 10 कहाँ है, वो दूसरे ब्लॉक में है, दूसरे स्कोप में है, तो x इक्वल टू 10 इज वैलिड हियर ओनली, x equal to 1 is valid here only। okay,
सो इसका मीनिंग वही है, सेम वेरिएबल कैन बी यूज टू हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट ब्लॉक्स. ओके, next is scope of variable is valid from the point of declaration to the end of block of that declaration. Very simple. scope of variable कहाँ से कहाँ तक valid है? the point of declaration कहाँ से declare किया? इस bracket से हमने declare किया. so this is scope of variable is valid from the point of declaration, यहाँ से declaration start किया to the end of that declaration. the end means ये bracket क्लोज हो रहा है, मीन्स दिस इज द एंड और ये स्टार्ट है. सो स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज वैलिड फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंड ऑफ ब्लॉक. एंड ऑफ ब्लॉक कैसे होगा? जब हम करली ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं. अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक इज लोकल टू दैट ब्लॉक. ओके, जो चीजें अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन दिस ब्लॉक, जो भी वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज नोन एज लोकल वेरिएबल. ओके, एग्जाम्पल फॉर दिस इज लोकल डिक्लेरेशन, जो भी वेरिएबल उस ब्लॉक में डिक्लेयर है, सो दिस इज नोन एज लोकल वेरिएबल. यहाँ पे भी ये लोकल वेरिएबल है एंड दिस इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल. सो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज ग्लोबल. We can see here and we'll see the change. This is your inner block and this is your outer block, block number 1, and this is block number 2. So block number 2 is sub part of block number 1. Okay, as you all can see, block number 2 is part of block number 1 only. So you can see this int x equal to 10 is valid in whole program and int x equal to 1 is valid in this block number 2 only. So int x equal to 1 is local for this block. ये block के लिए क्या है? int x equal to 1 local है. int x equal to 10 is local for this block. Okay, x equal to 10 भी लोकल है, बट ये वाले ब्लॉक के लिए है, बड़े वाले ब्लॉक के लिए, ब्लॉक नंबर 1 के लिए. एंड int x equal to 10 is global. Okay, int x equal to 10 is global but for this block, ब्लॉक नंबर 2 के लिए वो क्या है? ग्लोबल है. ओके, सो कैसे है ग्लोबल? जो भी करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो लोकल है, सो दिस इज लोकल. बट जो करली ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इस ब्लॉक के लिए ग्लोबल है. ग्लोबल हो गया वो. तो हाउ टू एक्सेस दिस ग्लोबल वेरिएबल? अगर मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा तो वो बार बार मुझे क्या देगा? x इक्वल टू 1 ही देगा. सो हाउ कैन वी एक्सेस दिस ग्लोबल वेरिएबल? द मेन रीजन इज, अगर हमने बहुत सारे x और कौन से भी वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज दिया है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करना है. लोकली तो वी कैन यूज नंबर ऑफ वैल्यूज, बट ग्लोबल वैल्यू को कैसे यूज करना है? सो हाउ टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स? सो इन सी लैंग्वेज ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने में प्रॉब्लम था. ओके, सो C++ में वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एंड दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ऑपरेटर. एक न्यू ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम क्या था? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. एंड द सिंबल इज 2 times colon. जस्ट पुट 2 times colon and you can access global variable. ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि यहाँ पे वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं एक्सेस कर पा रहा है, वो सिर्फ लोकल वेरिएबल ही एक्सेस कर पा रहा है. सो हाउ कैन वी एक्सेस x equal to 10 in this block number 2? ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या यूज किए करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इन शॉर्ट SRO, with this symbol that is 2 times colon. This is used to access hidden data. ओके, ये क्या करता है? This is used to access hidden data. हिडन डेटा आपका जो भी है वो एक्सेस करने के लिए ये मेथड यूज होता है, ग्लोबल. ओके, ग्लोबल जो आपके ब्रैकेट के बाहर है, जो आपके ब्लॉक के बाहर है, वो डेटा यूज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस सिंबल. द सिंटैक्स इज, बस आपको ये SRO वाला सिंबल
लगाना है कहाँ पे, वेरिएबल नेम के पहले. सपोज द वेरिएबल इज a, so just you have to put this SRO symbol and you will get your global data. Okay, so let's see the program. Here you are having coding, so you can see कि IO stream के बाद एक global value declare है int m equal to 10. Okay, यहाँ पे पहला value declare है int m equal to 10. फिर void main start हुआ and we are in now second block. Here you are having int m equal to 20. तो यहाँ पे common variable क्या है, m है. फिर उसके अंदर भी एक ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 3, int k equal to m first of all and int m equal to 30. So ये इनर ब्लॉक के लिए ग्लोबल वैल्यूज क्या क्या हैं, द ग्लोबल वैल्यू इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस int, ये इस ब्लॉक के लिए ग्लोबल वैल्यू. वॉइड मेन के लिए ग्लोबल वैल्यू क्या है, m equal to 10. सो लेट्स सी, वी विल सी वन बाय वन. तो पहला सी आउट है k इक्वल्स टू, तो इसके थ्रू क्या होगा, जस्ट आई विल गेट इन आउटपुट k इक्वल्स टू. फिर k का वैल्यू प्रिंट करना है, तो कंपाइलर क्या करेगा, k का वैल्यू ढूंढ रहा है. k का वैल्यू ढूंढने में उसको क्या मिला, k इक्वल टू m. तो उसको ये पता चला कि m का वैल्यू क्या है, k में कॉपी हो रहा है. सो अब वो m का वैल्यू ये बाद में हुआ है डिक्लेयर. ओके, सो ये स्टेटमेंट के पहले वो चेक करेगा कंपाइलर कि m का वैल्यू कहां पे डिक्लेयर है. कंपाइलर वोंट टेक दिस वैल्यू. ओके, मेक इट क्लियर. कंपाइलर अगर ये लाइन कंपाइल कर रहा है मतलब वो ये लाइन पे जा चुका है. सो कंपाइलर को ये पता चला है कि m पहले डिक्लेयर है, सो इट विल जस्ट गो द प्रीवियस लाइन एंड चेक कि 20 क्या है, m में कॉपी हुआ है. सो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 20, एंड ये 20 आपका k में कॉपी हुआ है. सो सी आउट k मीन्स व्हाट, value of k is 20. Compiler will go to previous statement, not the next one. See out local m, so it will print same way, local m equals to value of m. अभी वो क्या करेगा, पहले लोकल ब्लॉक में ही देखेगा, पहले खुद के ब्लॉक में ही देखेगा. तो उसको क्या मिल गया, m इक्वल टू 30. यहाँ पे तो k इक्वल टू m है. ओके, सो उसको क्या मिल गया, फटक से जब वो प्रीवियस स्टेटमेंट पे जा रहा है, प्रीवियस लाइन पे जा रहा है, तो उसको क्या मिल गया, m इक्वल्स टू 30. सो इट विल गिव यू 30. सी आउट ग्लोबल m. अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल वैल्यू चेक होगा जो सबसे बाहर का वैल्यू है, जो ग्लोबली डिक्लेयर है. ग्लोबल m. सो SRO सिंबल यूज करके क्या कर सकते हैं हम, जो ग्लोबल वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो ग्लोबली ये वाला जो वैल्यू डिक्लेयर है, इट विल बी एक्सेस्ड एंड वैल्यू ऑफ m विल बी 10. ओके, सो मेक इट क्लियर, k इक्वल टू m मीन्स व्हाट, कंपाइलर विल गो टू प्रीवियस स्टेटमेंट एंड चेक करेगा कि m का वैल्यू क्या डिक्लेयर किया था. तो 20 था, तो वो 20 k में कॉपी हुआ. सो k विल बी 20. लोकल m, इट विल चेक इन इनर ब्लॉक ओनली, सो m का वैल्यू उसको 30 मिल गया. ग्लोबल m, सो वो आउटर ब्लॉक का वैल्यू चेक करेगा, वहां पे डिक्लेयर है m इक्वल टू 10, सो इट विल टेक m इक्वल टू 10. सो क्या यूज है ये सिंबल का, यूजिंग दिस सिंबल वी कैन एक्सेस सम अदर ब्लॉक्स वैल्यू. ठीक है, कोई और ब्लॉक का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका यूज है. अदरवाइज हम अगर इन आउटर ब्लॉक में कौन सा भी वैल्यू दे रहे थे तो वो नहीं एक्सेस हो रहा था. ऑल वैल्यूज वर लोकल ओनली, वो सारी वैल्यूज को क्या ले रहा था, लोकल ही ले रहा था. सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर ग्लोबल वैल्यू. ओके, टू गेट ग्लोबल वैल्यू, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन फॉर योर 12th इन टॉपिक क्लास. ओके, आफ्टर सम टाइम वी विल स्टार्ट क्लास टॉपिक, उसमें ये इंपॉर्टेंट सिंबल है. क्लियर? सो आई होप दिस SRO एंड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आपका ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ है, और ये दोनों टॉपिक कंप्लीटली 12th के कंटेंट में है. सो रिवाइज इट ट्वाइस, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंट्रोल स्टेटमेंट्स. वी विल लर्न नंबर ऑफ ब्लॉक्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, if else, do while, such kind of blocks we have to study. After that we will start with
topic of 12th. Clear? So revise it twice, especially SRO. Okay, thank you class.